Hello students, welcome back. Yesterday in the previous video I discussed about what is oxidation and oxidation number, and also what is what is oxidation and reduction. So as I discussed earlier, in oxidation what happens? If the oxidation number increases, we can say oxidation is going on, and if the oxidation number decreases, then reduction is going on. All right, this I discussed earlier in the previous video. Now today I'm going to talk about what are oxidizing and reducing agents. Okay, but first let's practice one more question regarding this oxidation number, so it will be more clear to you. So this is a question: Fe2O3 plus 3CO, it gives 2Fe plus 3CO2, correct? Now we have to find out which atom or element is getting oxidized and which one is getting reduced. So for that, firstly we have to write the oxidation numbers of each and every element on the top of the symbol. Here Fe, it has an oxidation state of +3. This oxygen has an oxidation state of -2. This oxygen has an oxidation state of -2. So that is why this carbon must be having an oxidation state of +2. Then after that, in this Fe, it is in the elemental form, so it will be 0. And this in this CO2, it will be the carbon has +4 oxidation state and the oxygen has -2 oxidation state. Okay, so as you can see here, the oxidation number of Fe, it has been decreased from +3 to 0, right? So we can say when the oxidation number reduces or decreases, reduction is going on. All right, now just see here in carbon, the oxidation state of carbon is +2 in the reactant side and it is +4 in the product side. That means I can say that oxidation is taking place because oxidation number has been increased. Okay, so this is an example of oxidation and reduction in redox reaction, right? Now let's move on to the next topic, that is oxidizing and reducing agent. Oxidizing and reducing agent. Okay, so oxidizing agent or oxidant, it is also named as oxidant, is that substance which undergoes decrease in oxidation number of one or more of its element. Okay, सो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज़ हो रहा है वो कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट इज़ द सब्सटेंस विच अंडरगोज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. जिसका इंक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर पे, ठीक है, वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, अच्छा. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. MnO2 plus 4HCl, it gives MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. Okay, so now just see here, let's find out which one is getting oxidized and which one is getting reduced. For that we have to write the oxidation numbers. In Mn has an oxidation state of +4 in this, because oxygen has a -2 in most of its compounds, so -2 and 2 atoms of -4, so Mn should be +4, right? Now in H it is +1 and here it is -1. In MnCl2 it should be +2 and here in Cl it should be -1. In Cl2 it is 0 and here it is +1, it is -2. Okay, now just see the Mn, you can see here that the oxidation state of Mn has been reduced from Mn to Mn4 plus to Mn2 plus. So reducing agent or reductant, oxidizing agent or oxidant is the substance which undergoes decrease in the oxidation number of one or more of its element. So you can see the oxidation number has been decreased. So what kind of agent it is? Oxidizing agent. Okay, and here you can see
in Cl, the oxidation number is going from -1 to 0. That is why you can see what kind of substance it is. Increase in oxidation number is taking place, so it is a reducing agent, okay, because here oxidation number is increased. All right, so this is how we are going to find out which one is an oxidizing agent and which one is a reducing agent. Now moving on to the next topic, that is balancing redox reaction by oxidation number method. Okay, so basically there are two methods for balancing redox reaction. One is the oxidation number method, which involves the change in oxidation number of reducing agent and oxidizing agent, and the other one is the half reaction method. So I'm going to discuss the oxidation number method only. Okay, now oxidation number method of balancing chemical reaction is based on the conservation of electrical charges, okay, during the course of reaction. Also, we will not violate the law of conservation of mass also in this case, right? We have already studied that in a redox reaction, oxidation and reduction occur simultaneously, and oxidation involves an increase in the oxidation number and reduction involves a decrease in the oxidation number. And we have also we have to balance the electrical charges also, and we have to also take into consideration the law of conservation of mass. All right, so there are some rules for balancing the oxidation numbers. Let's see one by one what are the rules, and let's balance some questions, some redox reactions, right? And it will be easy one, don't worry, just you have to understand. So first of all, let me write one reaction over here. This is a molecular reaction, and one ionic reaction also I'll do. And we have to balance, sometimes the questions is asked in acidic medium you have to balance, and or in basic medium you have to balance, so you have to see it. So FeCl3 plus H2S gives FeCl2 plus S plus HCl. Okay, so this is an reaction, redox reaction, that you have to balance. So what are the rules? According to the rules, let's balance it. First of all, assign oxidation number to the atoms. Oxidation number assign करना है atoms को, ठीक है? तो यहाँ पे हम oxidation number assign करेंगे प्लस S प्लस HCl. चलिए हर एक एटम को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं. यहाँ पे होगा Fe का +3, यहाँ -1, बस एक ही क्लोरीन का लिखेंगे, तीनों क्लोरीन का -3 नहीं लिखना है, एक ही क्लोरीन का लिखना है, ठीक है? उसी तरीके से H2 का +1, एंड फॉर दिस सल्फर इट विल बी -2. इन दिस Fe ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2, again it will be -1, and here for sulfur it will be 0, and here +1 and -1. So just see the oxidation numbers. Okay, now you have to, in the second rule, you have to identify the elements or atoms which undergo oxidation and reduction. Now you have to identify which element is undergoing oxidation and which element is undergoing reduction. Okay, so that is an easy one because we have already studied this now. Just see, in this Fe, right, it is +3 in the reactant side, in the product side it is +2. So I can clearly see the oxidation number has been reduced. So oxidation number reduce हुआ है +3 से +2. जब oxidation number reduce होता है वो क्या होता है, reduction होता है ना, और वो कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ये भी जस्ट हमने पढ़ा, जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं किसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है. सल्फ़र का है ना, -2 था वो 0 हो गया. बाकी सबके ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो बाकियों को नहीं लिखना है. तो यहाँ पे -2, यहाँ 0, तो इसका क्या हुआ, इसका हुआ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ हुआ है, सो ऑक्सीडेशन ना, ठीक है? क्लियर है ये स्टेप? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, balance atoms undergoing oxidation and reduction. Now you have to balance the atoms which are undergoing oxidation and reduction. All right, तो अभी तक हमने सीखा कि Fe का हो रहा है रिडक्शन, है ना, Fe का हो रहा है रिडक्शन और सल्फ़र का हो रहा है ऑक्सीडेशन. नाउ यू हैव टू बैलेंस दीज Fe एंड सल्फ़र
इन बोथ साइड्स। फाइन, यहाँ देखो बैलेंस करने की ज़रूरत है नहीं बिकॉज Fe यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। अच्छा, सल्फ़र भी इस साइड में 1 है, इस साइड में 1 है, तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको समझने का पॉइंट है, ये रूल थोड़ा समझने वाला है, ठीक है, ध्यान दो। बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, आई एम गोइंग टू राइट इट अगेन। FeCl3 plus H2S, it gives FeCl2 plus S plus HCl. So balancing the charge, you have to consider two things. First is you have to find out the difference in the oxidation numbers, and then you have to cross multiply the difference. Okay, clear? Cross multiply the difference. First of all, let me write this oxidation number here, +3, and here in this case it is +2, and here it is -2, and here it is 0. Okay, now just see, Fe का reactant साइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्रोडक्ट साइड में +2 है, तो इनके अगर मैं डिफरेंस निकालूंगी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स का तो क्या आएगा, 1 आएगा ना डिफरेंस, 3 - 2 1। ओके, नाउ अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, सल्फ़र और सल्फ़र में -2 और इधर सल्फ़र में 0, तो इनका डिफरेंस निकालूंगी तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा ना। अच्छा, नाउ ये जो हमने डिफरेंस निकाला है ऑक्सीडेशन नंबर का, ये किसका डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का। अब ये जो हमने डिफरेंस निकाला है ऑक्सीडेशन नंबर का, नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस नंबर। कैसे, ये सल्फ़र का डिफरेंस आया 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है Fe के साथ, ठीक है, और ये Fe का जो डिफरेंस आया 1, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सल्फ़र के साथ। ओके, सो नाउ we can see here that in the reactant side, right, the charge in sulfur is -2, and in the product side it is 0. So what is the difference in the oxidation state of sulfur? The difference is 2. In iron also the difference is 1. So now we have to cross multiply the difference in the oxidation states. Okay, but remember one thing, that you have to only multiply the atoms which is undergoing oxidation and reduction. all right, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई, उसी एटम पे ये मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बाकियों के साथ नहीं। तो जैसे यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है FeCl3 में, सो 2 FeCl3 प्लस H2S, H2S 1 ही होगा क्योंकि यहाँ तो 1 है, तो 1 नहीं लिख रहे हैं हम लोग, गिव्स 2 FeCl2 प्लस S भी 1 ही होगा तो 1 नहीं लिख रहे हैं, प्लस HCl. all right, fine. Now in the next step, balance all other atoms except oxygen and hydrogen. Now we have to balance all the atoms except oxygen and hydrogen, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं, 2 FeCl3 प्लस H2S, it gets 2 FeCl2 प्लस S प्लस HCl. दिस इज़ द थिंग ना। अच्छा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करना है। ओके, चल तो देखते हैं, 2 Fe है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे भी 2 Fe है, ठीक है। अच्छा, Cl देखते हैं, Cl कितना है, 3 × 2 6 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 × 2 4, और यहाँ पर एक 5, एक कम हो रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। 2 लगा देंगे तो क्या हो गया, देखो 2 × 2 = 4 और इधर 6 Cl हो गए, इधर भी 6 Cl हो गए, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों सेम। सल्फ़र भी यहाँ एक है, यहाँ पे भी सल्फ़र एक है, ठीक है। ऑलराइट, वी हैव बैलेंस नाउ। नाउ इन द रूल नंबर 6 you have to balance oxygen and hydrogen. Okay, to balance oxygen you have to add H2O, all right, and to balance hydrogen you have to add H+ ion in acidic medium, and you have to add OH- ion in the basic medium. Okay, in basic medium एक बात का ध्यान रखना है कि H+ ion रिडॉक्स रिएक्शन में नहीं दिखना चाहिए। अगर बेसिक मीडियम में H+ आयन दिखने लगे, अगर आप डाल दे रहे हो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, तो आपको H2O डाल के OH- डाल के आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्ट हो जाएगा, H2O बना लेगा।
आई बात समझ में? कैसे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, समझ आ जाएगा, ठीक है. सो वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नाउ इन दिस इक्वेशन नो ऑक्सीजन इज़ देयर. ऑक्सीजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन देखते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है. तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2FeCl3 प्लस H2S, इट गिव्स 2FeCl2 plus S plus 2HCl. Okay, so this is the final balanced redox reaction. Okay, so it was easy, right? Now let's practice few more questions in acidic medium and in basic medium. Okay, so now just see this question. MnO2 plus HCl, it gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O. Okay, so now we are going to balance this redox reaction using all the rules that we have just learned. Okay, so the first of all what we have to do, we have to assign oxidation numbers. We have to assign oxidation numbers to all the atoms, right? So MnO2 plus HCl, it gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O. Now write all oxidation numbers. Mn will have oxidation number of +4. Okay, hydrogen will have oxidation number of +1 -1. This Mn will have oxidation number of +2, and this Cl2 will have oxidation number of 0, and rest of the we don't have to write because it is ऑक्सीडेशन नंबर में इसमें चेंजेस तो आएंगे नहीं, सेम है. तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा उसी को आप कोशिश करेंगे लिखने का. वन मोर थिंग, इफ़ इन द क्वेश्चन H2O और H+ और OH- ये सब अगर दिया हुआ रहेगा तो आपको उसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है. H+ देने का मतलब है आपको बताया जा रहा है कि एसिडिक मीडियम है. OH- अगर है तो बताया जा रहा है कि बेसिक मीडियम है. और H2O ऐसे ही अगर लिखा हुआ है तो उसको फिर लास्ट में हम लोग बैलेंस करने में उसको यूज़ करेंगे, ठीक है. तो हमने जस्ट पहले लिख लिया असाइन ऑक्सीडेशन नंबर. रूल नंबर 2 क्या था, नाउ यू हैव टू see which one is getting oxidized and which one is getting reduced. तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना. एंड यहाँ पे देखो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर में, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है, -1 से 0 जा रहा है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है. राइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमने क्या सीखा, वी हैव टू बैलेंस द चार्ज एंड एटम्स. अच्छा, चार्ज बैलेंसिंग मैं बताऊंगी आपको. यहाँ पे चार्ज ज़रूरत नहीं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो यहाँ पे आप एटम्स को बैलेंस करेंगे, ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे देखो एटम्स को बैलेंस हमें करना है, राइट. तो यहाँ पे अगेन मैं इसको लिख देती हूँ. यहाँ पे MnO2 प्लस HCl, इट गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2. हम देखते हैं कि जो एटम ऑक्सीडाइज हुआ है और रिड्यूस हुआ है वो बैलेंस्ड है कि नहीं, ठीक है. नाउ Mn का हो रहा है रिडक्शन एंड Cl का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है. यहाँ देख सकते हैं Mn रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, तो ये बैलेंस्ड है, राइट. ओके, बट हियर जस्ट सी इन Cl यहाँ पे -1 है, ये 0 है, और यहाँ पे एक ही Cl है, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 Cl है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 2 Cl कर देंगे, ठीक है. आई बात समझ में? ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने इसको 2 Cl कर दिया. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स. कितना चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है. ये हमें क्या फाइंड आउट करना है और उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यही है नेक्स्ट स्टेप. अच्छा, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं Mn का +4 से +2, तो डिफरेंस क्या होगा, 4 - 2 2. अच्छा, इसमें देखो Cl का यहाँ पे क्या होगा, जो आपका डिफरेंस है वो बेसिकली यहाँ पे भी 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl है ना, तो 2 Cl के लिए यहाँ पे -2 हो जाएगा. 2 Cl है ना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 Cl है, सो एक का -1, 2 का -2, सो -2 और 0 यहाँ पे 2 ही होगा इनका डिफरेंस. इसका डिफरेंस भी हो जाएगा 2, है ना. सो रिमेंबर दिस, अगर
दिस कोएफिशिएंट्स इट टर्न्स आउट टू बी सेम, देन जस्ट कैंसिल इट. अगर ऐसा सेम आ जाता है उसको कैंसिल कर देना है. ठीक है, तो अब इसको कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत थी, तो 1 1 ही है ना, तो 1 1 आया है, तो 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यही आएगा. अच्छा, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, यही था हमारा इक्वेशन. इसमें हमें सारे एटम्स को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के. ठीक है, तो यहाँ देखो Mn is balanced, fine, but in the product side we have 4Cl, but in the reactant side we only have 2Cl, right? So what we have to do is we have to increase the number over here, and I have to write 4 for balancing the Cl, right? So this one is the new equation, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O. Now lastly we have to balance oxygen and hydrogen. Fine. Now this is an acidic medium, you can see because HCl is there, right? Acidic medium है. अच्छा, तो acidic medium में हमें ऑक्सीजन को, अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है उसके लिए हमें H2O ऐड करना होगा. ठीक है, अच्छा यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. इन दिस रिएक्टेंट साइड हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर? 2. एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन इज देयर? 4. एंड इन द प्रोडक्ट साइड हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर? ओनली 1. and in the product side hydrogen is 2. so what we have to do is short हो रहा है एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का, मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल हमें ऐड करना है. तो हम इधर 2 कर देंगे, 2 कर देंगे तो यहाँ पे भी देखो 2 ऑक्सीजन हो गए दोनों साइड एंड 2 हाइड्रोजन हो गए, सॉरी 4 हाइड्रोजन हो गए दोनों साइड. सो नाउ द बैलेंस्ड इक्वेशन इज MnO2 plus 4HCl, it is MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. This is the balanced equation. Fine, get it now? All right, good. Now next question, let's find out, let's do one more question. In acidic medium, Zn plus HNO3, it gives ZnNO3 twice plus NH4 NO3 plus H2O. Okay, now first of all again you have to assign the oxidation numbers. So here zinc will have 0, nitrogen in this case has plus 5, here again the zinc has plus 2, here it has plus 5. Now this nitrogen in ammonium nitrate we have 2 nitrogens over there. ठीक है, तो इस नाइट्रोजन का क्या होगा? वी कैन ईजिली कैलकुलेट x plus 4 इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -3. इस नाइट्रोजन का -3 होगा. ठीक है, एंड यहाँ पे NH4 प्लस लिखते हैं ना. अच्छा, और NO3 का क्या होगा? +5. ठीक है, तो इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इस नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है. तो हमें इस नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर को कंसिडर करना होगा. ठीक है, आई बात समझ में आपको? अच्छा, किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है? देखो 0 से +2 जा रहा है, मतलब जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रही है. एंड यहाँ पे इस नाइट्रोजन का +5 से -3 की तरफ जा रहा है. इस नाइट्रोजन का +5 से -3 के तरफ जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन. ओके, नाउ वी हैव टू बैलेंस द नंबर्स ऑफ ये एटम्स विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो यहाँ पे एक ही जिंक है, यहाँ पे भी एक ही जिंक है, बैलेंस्ड है. यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी एक ही नाइट्रोजन है, वो भी बैलेंस्ड है. बस इस नाइट्रोजन को कंसिडर करना है ना, इसको नहीं देखना है. ऑलराइट, क्योंकि इसी का चेंज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर में, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा उसी को ध्यान देना है. फाइन, ओके. नाउ लेट्स बैलेंस. नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस द चार्ज. नाउ यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर को ही बैलेंस करने का. ठीक है, तो यहाँ देखो क्या कर रहे हैं. सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना होगा. आई शुड रब दिस नाउ, आई विल सेव सम टाइम बाय रबिंग दिस. ओके, तो यहाँ पे
आपका जिंक का देखो डिफरेंस कितना निकलेगा ऑक्सीडेशन का, यहाँ पे डिफरेंस निकलेगा 2, राइट। और नाइट्रोजन का कितना डिफरेंस निकलेगा, नाइट्रोजन का डिफरेंस निकलेगा देखो +5 है ना, -3, यही होगा ना। डिफरेंस निकाल रहे हैं तो बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, फिर माइनस और -3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आएगा ना। तो देखो दोनों इवन नंबर्स हैं, तो हम इसको आराम से ये कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। अब ये जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस आया है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो जिंक का आया है उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है नाइट्रोजन के साथ, और मतलब HNO3 के साथ और इसके साथ, ठीक है। और इसका जो आया है उसको जिंक के साथ, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 4Zn होगा मेरा प्लस HNO3, it gives 4ZnNO3 2 प्लस NH4NO3, यहाँ 1 ही है तो इसलिए मैं नहीं लिख रही, प्लस H2O, ठीक है। नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम हैं उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ देखते हैं, जिंक है हमारे पास 4 है ना, नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ 1 है। अच्छा, इस साइड प्रोडक्ट साइड में जिंक 4 है, नाइट्रोजन कितना है देखो, नाइट्रोजन हो गया आपका यहाँ पे 4, ठीक है, 4 है इंटू 2 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे +2 10 हुआ ना, आई बात समझ में, 10 हुआ यहाँ पे, है ना। तो हमें उसको बैलेंस करना होगा इस साइड, तो इस साइड नाइट्रोजन 10 है, इस साइड नाइट्रोजन 1 ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 कर देंगे। 10 कर देंगे तो नाइट्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो गया, 10 हो गए ना। ओके, नाउ 10 कैसे हुआ समझ आया ना, यहाँ देखो 10 कैसे हुआ, यहाँ देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, 2 हो गया, और ये पूरा मल्टीप्लाइड है 4 से, ठीक है। तो 4 2 8 हो गया इधर, और इधर 9, और इधर 10 नाइट्रोजन हुआ, और यहाँ पे भी हमें इसको बैलेंस करने के लिए 10 नाइट्रोजन करना पड़ा, ठीक है। आई बात समझ में, चलो। नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करना है हमें, तो अब देखते हैं हम ऑक्सीजन हमारे पास कितना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, और इधर इसका कोफिशिएंट कितना है 10, तो 10 × 3 30। हाइड्रोजन कितना है 10 है, ठीक है। इस साइड देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, 3 × 2 6, 6 × 4 है ना, 6 4 24, फिर इधर 24 25 26 27, ठीक है। 1 मिनट, 3 2 6, 6 4 24 28। तो यहाँ पे हो गई प्रॉब्लम, यहाँ हमारे पास 3 2 6 24 28 ही है, होना चाहिए 30। हाइड्रोजन देखते हैं कितना है, हाइड्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट साइड में 4 5 6 हाइड्रोजन है। तो हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन कम है 2 और हाइड्रोजन कम है 6 7 8 9 10 होना चाहिए। तो अगर हम इसमें 3 ऐड कर देते हैं H2O में तो हमारा काम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अच्छा ये वाला जो है ना ऑक्सीजन, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 27 होगा, ठीक है। तो 27 होगा, 3 ऑक्सीजन हमारे पास कम है, तो इसके लिए हम 27 28 29 30 हो गया 30। और हमारे पास 3 2 जो हाइड्रोजन है वो कितना था हमारे पास, 4 ही हाइड्रोजन थे ना पहले, ठीक है। तो हमने अभी ऐड कर दिया 6 हाइड्रोजन, 3 2 6, तो हो गए 10। तो दोनों साइड 30 और 10। आई बात समझ में, हमने क्या किया, मैंने बताया था कि H2O अगर आता है रिएक्शन में तो उसको कंसिडर नहीं करना है, बस वो आपको दिखाने के लिए है कि बैलेंसिंग होती है उससे, उसको बैलेंस करना है, H2O ऐड करना है, उसके लिए आपको मैंने यहाँ पे दिखाया,
ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो ये बैलेंस हो गया. नाउ वन फ्यू मोर क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, अब एक ये क्वेश्चन करते हैं इजीली जो आपको समझ आए. Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस gives Cr3 प्लस SO4 2 माइनस. ठीक है. अच्छा, ये आयनिक इक्वेशन है. ठीक है, तो अगेन हम सबसे पहले आयनिक इक्वेशन लिख दिया हमने. आयनिक इक्वेशन है, इसको कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी आपको. फिर इसमें आयन को भी बैलेंस करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आयनिक इक्वेशन है, तो अगेन स्टेप्स भी वही है. सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है. इसमें +6 है, इसमें +4 है, इसमें +3 हो जा रहा है, एंड इस सल्फ़र में +6 हो जा रहा है. बाकी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही होता है. अच्छा, तो इसमें इसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है. Cr2O7 2 माइनस का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रही है. एंड सल्फ़र का हो रहा है ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुई है, सो सल्फ़र का हो रहा है ऑक्सीडेशन. करेक्ट. सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स जो डाइक्रोमेट आयन है इट इज़ एन ऑक्सीडेंट, और जो सल्फाइट आयन है इट इज़ अ रिडक्टेंट. इसी का जस्ट उल्टा होता है ना, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है मतलब ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और SO3 2 माइनस सल्फाइट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है मतलब ये है रिड्यूसिंग एजेंट. फाइन. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड यू हैव टू मेक दिस इक्वल. राइट, जस्ट हमने जैसे रूल पढ़ा था अभी. ठीक है, तो इसको हम करते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है ना. दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं. अच्छा, बीच में हमने एक स्टेप छोड़ दिया. हमें यहाँ पे ये बैलेंस करना था इनका तुम्हारा नंबर है ना, नंबर ऑफ़ एटम्स विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसको बैलेंस करना है. यहाँ पे Cr2 है, यहाँ पे Cr एक ही है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे. ठीक है, सल्फ़र एक है, साइड भी सल्फ़र एक है. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस. डिफरेंस देखो क्या है, जो आपका डिफरेंस आएगा इट विल बी 6 माइनस 3 पर एटम. ठीक है. अच्छा, और इसमें डिफरेंस क्या आएगा, ये इसमें आपका अगेन इसमें 6 माइनस 4 2. ठीक है, यही डिफरेंस है. अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, मतलब कि ये जो है डाइक्रोमेट आयन का जो आया है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है सल्फेट के साथ, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस. और सल्फाइट वाला जो है उसको हमें डाइक्रोमेट के साथ मल्टीप्लाई करना है. ओके, नाउ लेट्स डू इट. सो इट विल बी, यहाँ पे 3 है इसका, तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और 2 है तो इसके साथ. सो इट विल बी 2 Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, प्लस 3 SO3 2 माइनस, इट गिव्स Cr2 प्लस ना, तो कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 2 4 Cr3 प्लस 3 SO4 2 माइनस. ठीक है, यही आएगा. ओके, करेक्ट. नाउ वी हैव टू बैलेंस द चार्ज. Okay, so now you can see here that it is even numbers ना. यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पे 4 Cr, तो we can easily do this. यहाँ पे इसको reduce कर सकते हैं. ठीक है, for easy calculations 3 SO3 2 minus, it gives 2 Cr3 plus 3 SO4 2 minus. right. Now we have to balance the ionic charge. अब हमें क्या करना है, आयनिक चार्ज को बैलेंस करना है. ठीक है, आयनिक चार्ज को बैलेंस करने के लिए यू हैव टू सी कितने आयन्स प्रेजेंट है बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन में. ठीक है, तो अगर नेगेटिव में चार्ज है देन नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हमें H+ आयन्स ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसके लिए हमें OH- ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है, आई बात समझ में. सो नाउ लेट्स बैलेंस द आयनिक चार्ज. हाउ डू वी डू इट.
सी इफ सिंस द मीडियम इज़ एसिडिक, ये मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है, सो वी हैव टू ओनली यूज़ H प्लस आयन्स टू बैलेंस द चार्ज. ओके, सो लेट्स डू इट. इन Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस कितने चार्ज है, यहाँ पे देखो Cr2O7 पे -2 का चार्ज है, ठीक है. और यहाँ पे सल्फाइट आयन में देखो, सल्फाइट आयन में हमारे पास -2 चार्ज है, लेकिन हमारे पास कितने सल्फाइट आयन है, 3 है. सो -2 × 3 आई कैन राइट. तो यहाँ पे -2 प्लस -6, सो इट विल बी -2 - 6 इज इक्वल टू -8. ठीक है, तो यहाँ पे -8 का चार्ज है, और इस साइड में हम ज़रा देखते हैं प्रोडक्ट साइड में कि हमारा चार्ज क्या है. यहाँ पे 3 प्लस का चार्ज है, कितने हैं हमारे पास, 2 Cr है, सो इट विल बी +6, राइट. एंड फॉर दिस इट विल बी 3 × -2, सो +6 प्लस -6, तो ये है 0. मतलब कि हमारा यहाँ पे चार्ज बैलेंस नहीं है. रिएक्टेंट साइड में -8 चार्ज है, एंड प्रोडक्ट साइड में आई हैव नो चार्ज, 0 चार्ज. सो टू बैलेंस द -8 चार्ज वी हैव टू ऐड 8 H प्लस आयन्स एट द रिएक्टेंट साइड. रिएक्टेंट साइड ही करना है हमें ना, क्योंकि इसी साइड में -8 एक्स्ट्रा चार्ज है हमारे पास. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ Cr2O7 2 माइनस, जो हमारा रिएक्टेंट साइड है, प्लस 3SO3 2 माइनस, इसमें हम लोग 8 H प्लस ऐड कर देंगे. क्या कर देंगे, 8 H प्लस ऐड कर देंगे, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में ही हमारे पास -8 चार्ज है. सो आई विल गेट दिस. तो मतलब 8 पॉजिटिव चार्ज 8 नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा, तो रिएक्टेंट साइड में भी 0 चार्ज, प्रोडक्ट साइड में तो 0 चार्ज था ही. ठीक है, राइट. सो नाउ we have to balance the hydrogen and oxygen atoms. So now for this, now count, no, let's first balance the atoms other than oxygen and hydrogen. So first see Cr2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. ठीक है, यहाँ पे 3 सल्फर है, यहाँ पे 3 सल्फर है. चलो ठीक है, ये बैलेंस्ड है. नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ऑक्सीजन कितने हैं एंड हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं प्रोडक्ट साइड में. ठीक है, सो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 7 एंड 3 × 3 9. ठीक है, तो सॉरी 3 3 = 9 एंड यहाँ पे 7 18 है ना. ठीक है, और इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है. ठीक है, और इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 4 3 = 12 एंड हाइड्रोजन कितने हैं, कुछ भी नहीं है ना, 0 है. सो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन ऐड करना है. ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो 4 कम पड़ रहे हैं, नहीं 6 कम पड़ रहे हैं. ठीक है, एक सेकेंड, ओ सॉरी, इट शुड बी 16, आई मिस कैलकुलेटेड. इट शुड बी 16, राइट. तो हमारे पास 4 कम पड़ रहे हैं ऑक्सीजन एंड 8 कम पड़ रहे हैं हाइड्रोजन. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ we have to add, to balance this hydrogen and oxygen we have to add water. So 4 molecules of water if I add, then this equation will get balanced. 4 2 = 8 hydrogen now, and oxygen it will be 16. So now this whole equation is balanced. Okay, this whole equation is balanced. So this is how you are going to balance an ionic equation. In ionic equation you have to balance the charge. Okay, now let's see one another question from basic medium. इतने सारे questions हमने बनाए एसिडिक मीडियम के, अभी हम एक बेसिक मीडियम के भी क्वेश्चन बनाते हैं. ठीक है, बेसिक मीडियम में हो सकता है कि आपको बस लिख दिया जाए और मतलब इक्वेशन रेडॉक्स रिएक्शन लिख दिया जाए, बगल में बेसिक मीडियम लिख दिया जाए, देन यू हैव टू बैलेंस इट यूजिंग द बेसिक मीडियम. ठीक है, नाउ let me write an equation. So Cl2 plus IO3 minus plus OH minus, it gets IO4 minus plus Cl minus plus H2O. ठीक है, अच्छा अगेन हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखेंगे सबका. इसमें आयोडीन का 0 होगा, इस केस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, कितना होगा, x + 3 × -2 = -1. So x - 6 - 1,
x इक्वल टू -1 + 6, x इक्वल टू +5, मतलब आयोडीन का इस केस में +5 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इक्वेशन में OH और H2O रहे तो उसको इग्नोर करें, ठीक है। अच्छा, आयोडीन का देखते हैं। आयोडीन को है, क्या हो जाएगा इस केस में आयोडीन का, देखते हैं। चलिए अगेन लेट्स कैलकुलेट। x + 4 × -2 इज इक्वल टू -1, x - 6 इक्वल टू -1 और x इक्वल टू +7। इन दिस केस इट विल बी +7, ठीक है। अच्छा, और Cl का क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो हम क्लियरली हमें दिख रहा है कि 0 से -1 की तरफ जा रहा है Cl का, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है, तो Cl का हो रहा है रिडक्शन। एंड आयोडीन से यहाँ गया है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ हुआ है, सो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, करेक्ट। ओके, नाउ वी हैव टू बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे हमारे पास 2 Cl है, यहाँ पे 1 ही Cl है। जिसमें Cl को ठीक से लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास 1 ही Cl है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा इस Cl को। आयोडीन हमारे पास 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू बैलेंस द व्हाट, टू बैलेंस द चार्ज, राइट। बैलेंस करेंगे हम चार्ज को, और या तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को देखेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। सो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, क्लोरीन का -1 है, नहीं 2 क्लोरीन है ना यहाँ पे, तो -2 होगा, -2 और 0, तो डिफरेंस हो गया 2 इस केस में। और यहाँ पे इसका डिफरेंस भी, यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। तो 2 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं आराम से, और क्रॉस मल्टीप्लाई का करना है, 1 ही करना है, तो सेम ही इक्वेशन आएगा, राइट। नाउ यू हैव टू बैलेंस द एटम्स अदर दैन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं उसको बैलेंस कीजिए। हमने तो ऑलरेडी कर लिया है। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें OH- ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं और हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन हैं और कितने हाइड्रोजन हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास इसमें 3 है, और हाइड्रोजन कितना है, एक भी नहीं। और इस साइड हमारे पास ऑक्सीजन है 4, ठीक है, और हाइड्रोजन हमारे पास एक भी नहीं है, ठीक है। तो क्या करना होगा, इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन है 3, इसमें 4, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे अगर 2OH- लगा देंगे हियर इन दिस केस, और यहाँ पे H2O है, तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे इस केस में, 3 एंड 4, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन H2O तो ऐड करना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी 5 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी 5 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी H2O ऐड किया तो 2 हाइड्रोजन आ गए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी, ठीक है। ओके, सो ये हमारा टोटल बैलेंस इक्वेशन आया OH- का, ठीक है। Now let's do one more question from basic medium, okay. MnO4- plus Br-, it gives MnO2 plus BrO3-, okay. So let's see here how to do it. Again let's write the oxidation numbers, हर एक के ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे हम लोग। Br का -1 होगा, और इस केस में Br का कितना होगा निकालते हैं हम लोग, x + 3 × -2 इज इक्वल टू -1, तो x - 6 इक्वल टू -1 और x इक्वल टू +5, ठीक है। इसका होगा +5, आई बात समझ में, ओके। नाउ इसका हम देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। इसका रिडक्शन हुआ है, और इसका जो है ऑक्सीडेशन हुआ है, Br का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़। नाउ बैलेंस, सबको बैलेंस करो जो एटम्स हैं अदर दैन, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है उसको बैलेंस करना। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ Br, यहाँ Br, एक चलो ठीक है, बैलेंस्ड है। नाउ नेक्स्ट क्या स्टेप है हमारा, याद करो क्या स्टेप है,
नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमें निकालना है डिफरेंस, इनके और इनके बीच के ऑक्सीडेशन नंबर्स का डिफरेंस, और उसके बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। 7 - 5, सॉरी नहीं गलत कर रही हूँ मैं, -1, ये +5 है ना, पहले हम लोग पहले इसको लिखेंगे +5 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 6, और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 और 4, तो 7 - 4 ये हो जाएगा 3। तो इसको हम लोग इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, राइट। अब नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। सो जो बी आर का डिफरेंस निकला है उसको हमें एम एन के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो एम एन का डिफरेंस निकला है उसको बी आर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली हमें 2 को एम एन के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बी आर को तो 1 आया ना, 1 होगा ना, एम एन का तो 1 आया था, तो इट विल बी 2 MnO4 माइनस प्लस बी आर माइनस विच गिव्स 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस, राइट। नाउ सी, अब हम देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे आयनिक चार्जेस दिख रहे हैं ना, तो हम देखते हैं कि कितना यहाँ पे आयन्स हैं। तो इसमें MnO4 माइनस कितने हैं हमारे पास, 2 है। ठीक है, तो बेसिकली कितने हैं चार्जेस हमारे पास यहाँ पे, 2 -2, ठीक है, और प्लस ये हमारे पास यहाँ पे -1, तो -2 -1, तो ये हो जाएगा -3। Now in this side, in the product side, you can see that the number of ionic charge is only 1, right? So यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें, ये माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें राइट साइड में, मतलब प्रोडक्ट साइड में हमें 2 OH माइनस ऐड करने होंगे। ठीक है, तभी ये बेसिक मीडियम में बैलेंस आउट होगा। सो इट विल बी 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, इट गिव्स 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2 OH माइनस, ऑलराइट। मतलब कि अब यहाँ पे भी -3 चार्ज हो गया और यहाँ पे भी -3 चार्ज हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप you what you have to do is you have to balance the number of oxygen and hydrogen atoms on both sides. Okay, so just see, to balance the oxygen atoms you can see you have to add H2O, remember. So how many oxygen atoms are there? First let's see this. Here 4 2s are 8, and hydrogen is 0 on this side, and here in this side it is 2 2 4 5 6 7 and 8 9। ठीक है, कितना हो रहा है, 2 2s are 4 5 6 7 and 8 9, 9 ऑक्सीजन है, एंड हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है, करेक्ट। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन, मतलब कि इस साइड हमें 1 ऑक्सीजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। मतलब कि अगर हम रिएक्टेंट साइड में 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा, होगा ना। तो मतलब कि ये पूरा रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया है। ओके, सो नाउ द होल रिएक्शन इज़ नाउ बैलेंस्ड। I hope you have understood. All right. Thank you so much, students. Have a great day.